Good morning, students. Today I am going to start chapter number 2, that is inverse circular functions. So let's start. First of all, we need to understand some trigonometric values. As we know, suppose this is a sine theta. So sine theta, the value of sine thetas are, you can say that this is 0 degree, then 30 degree, 45, 60, then 90, 120, then 135, then 150, and 180. So you know sine 0 degree means 0 degree. This is 1 by 2, 1 by root 2, 60 is root 3 by 2, 1, then again root 3 by 2, then 1 by root 2, 1 by 2 and 0 degree. और इसी तरीके से similarly we can find out the values of other angles such as 2010 and 210 degree and 225 degree and so on. देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, third quadrant and fourth quadrant, and we know in first and second quadrant sine is positive, in this quadrant sine is positive, and in this quadrant sine is negative, and in this sine is negative. So we know the values of sine 0 to 90 degree. Now come to find out the value of sine 1 to 0. So it can be written as you study in class 11, that it can be written as sine pi minus 60 degree. So we break it into case of pi. So this is the case of pi. So sine remains in sine and angle is 60 degree, and this is in second quadrant. So in second quadrant sine is positive. So sine 60 and value of sine 60 is root 3 by 2. So I write here root 3 by 2. Similarly, we can find out value of sine 135. So sine 135, this is sine pi minus 45. So it becomes sine 45, and sine 45 is 1 by root 2. So in this way, we can find out the values of these angles. So now we know that sine theta vary from 0 to 360 degree, or it can take any other values such as sine 720, sine 1060 degree and so on, and it can take negative values also. So we know sine theta value of this function, this is a function in theta, so value of this function is a number. देखिए this represent angle, this represent angle if theta is 0 then it is 0. ठीक है. If theta is 30 degree then it is 1 by 2. So यहां जो सामने जो वैल्यू है x, this is a real value, this is a real value. यहाँ थीटा वेरी करेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135 and so on. This is angle in degree, and x is the value that is real. So it may be 0, it may be half, 1 by root 2, root 3 by 2, 1 and some other values. So देखिए ये जो फंक्शन है x equals to sin theta, x equals to sin theta, this is a real value, यानी साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, एक रियल वैल्यू,
and this function is known as trigonometric circular function, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शंस। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें पता है, ऑल दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, सो इसको इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक बोला, ठीक है। नाउ कम टू दिस सर्कुलर। सो देखिए जैसे ही हमारा एंगल है यहां से यहां तक होगा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही अगेन 360 डिग्री से ऊपर जो है अबव वैल्यू होगी, सो अगेन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सो वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, सेम वैल्यू अगेन 720 तक होने के बाद फिर जैसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, सो अगेन सेम वैल्यू जो है रिपीट होने लग जाएगी। मीन्स वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है एक सर्किल की फॉर्म पे, सो इट इज नोन एज सर्कुलर फंक्शन। सो साइन थीटा, सो देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, all these are trigonometric circular function, all these are trigonometric circular functions, और इनकी जो भी वैल्यू होगी, चाहे साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, कोट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें फॉर एनी एंगल, सो जो वैल्यू है दैट बिकम्स रियल वैल्यूज, क्या होंगी, रियल वैल्यूज, ठीक है। सो इन सब की जो वैल्यू है दैट इज रियल वैल्यूज। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। यहां अब जो इसी से अगर मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, ठीक है, मींस सपोज अभी तक हमारा क्वेश्चन ये था कि जैसे साइन 45 की डिग्री कैलकुलेट, ये जो है हमारा एंगल है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो दिस इज 1/√2, दिस इज अ रियल वैल्यू एंड दिस इज एंगल, मीन्स एंगल दिया है सो साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंगल गिवन है तो कोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंगल गिवन है देन यू कैन से दैट कोसेक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए रियल वैल्यू, सपोज 1/√2, 2 इनफिनिटी एंड सो ऑन, सो वो सारी की सारी क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगी, ठीक है। लेकिन अब अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज करूं, मुझे वैल्यू गिवन है, जैसे कि साइन में, इन साइन फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, इन साइन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज √3/2, देन फाइंड एंगल, मीन्स हमें जो साइन है उसमें कोई एंगल ऐसा है कि उस एंगल का यूज करें, देन वैल्यू हमारे पास 3/2 आती है, देन फाइंड द एंगल। सो यहां पे देखिए हमें एंगल फाइंड आउट करना है, सो वो कैसे होगा, यहां जो थीटा है, दिस थीटा, अगर मुझे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स है और थीटा कैलकुलेट करना है, सो ये जो साइन है ये इस साइड जाके, और देखिए हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, यानी ये थीटा जो है साइन इस साइड जाएगा और किस में कन्वर्ट होगा, एक्स में। अब देखिए यहां पे हमें कैलकुलेट करना, दिस इज एंगल एंड दिस इज रियल वैल्यू, दिस इज रियल वैल्यू, सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी एंगल, सो देखिए यहां पे x जो है, यहां पे x जो है दैट इज साइन थीटा, सो x की वैल्यू होगी रियल वैल्यू, कोई नंबर, यहां थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, सो थीटा की वैल्यू होगी एंगल। जैसे मैं बात करूं साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए, सो इसकी वैल्यू होगी कितनी, 1/√2, दैट इज रियल वैल्यू, लेकिन यही क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से हो, साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू बताइए, द वैल्यू ऑफ दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, दिस इज 45 डिग्री, और 1/√2 यू कैन से दैट 135 डिग्री, और इसी तरीके से और भी। लेकिन ये जो सारी की सारी वैल्यू है, दीज आर एंगल्स, सो यहां इनवर्स में है, उसकी वैल्यू एंगल्स में होगी, ठीक है। और अगर
ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी रियल वैल्यू। वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, दैट साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स इनवर्स, बिकॉज देखिए यहां जो है दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, और यहां जो है दिस इज रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। जैसे मैं बात करूं अभी साइन इनवर्स 1 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट, देखिए सपोज x की जगह मैंने यहां लिखा 1। ठीक है, सो ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, मीन्स वी हैव टू फाइंड दैट एंगल इन विच वैल्यू ऑफ साइन इज 1। सो ये जो है ये हमारा 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 जो है हम बात करें पाई प्लस 90 मीन्स 270 डिग्री हो सकता है, बिकॉज 270 वैल्यू जो है उसकी भी यही होगी। सो इस तरीके से इसकी वैल्यू तो होगी 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब बात करें हम इसकी, यहां भी मैं x की जगह साइन x की जगह 1 पुट करता हूं एंड इनवर्स ऑफ दिस। नाउ दिस इज एंगल, हियर दिस वन इज एंगल, सो इट इज 1 अपॉन साइन 1 जो है, यहां अगर साइन के साथ यहां कोई नंबर है सो दैट इज एंगल, सो साइन 1 डिग्री, सो 1 अपॉन साइन 1 जो है उसकी वैल्यू 0.001 समथिंग इस तरीके से होती है। सो 1 अपॉन दिस इज ए रियल वैल्यू, दिस इज ए रियल वैल्यू। सो देखिए पहली चीज मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर दूं, फर्स्ट वन दैट साइन इनवर्स एक्स इसका रिजल्ट तो होगा एंगल। ठीक है, और साइन एक्स इनवर्स इसका रिजल्ट होगा रियल वैल्यू, साइन एक्स इसका रिजल्ट होगा रियल वैल्यू। सो देखिए ये जो है इसकी यूनिट जो है डिग्री, यूनिट ऑफ दिस इज डिग्री एंड यूनिट ऑफ दिस इज नंबर, रियल नंबर। सो देखिए यूनिट ही इनकी सेम नहीं है, बोथ फंक्शंस हैव डिफरेंट यूनिट। यूनिट ऑफ दिस, यूनिट मीन्स in which we measure that value. So unit of this is degree and unit of this is a number, real number. ठीक है, सो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैं बात करूं कि आपको बोले कि 2 किलोमीटर्स एंड 2 kg बोथ आर सेम और डिफरेंट। सो हमें पता है 2 किलोमीटर्स दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस and 2 kg that is the unit of mass. So both are different because unit of these are different. Similarly यहां पे हम बात करें जो साइन इनवर्स x है उसकी यूनिट तो क्या होगी, डिग्री, और जो साइन x इनवर्स जो है उसकी क्या होगी, रियल वैल्यू। ठीक है, सो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, फर्स्ट वन